Hi students, Jasmine Faraz again welcome you on my channel. We have completed two chapters, admission of partner and retirement of partner. I hope you understood it better. I have shared a link of retirement of partner in my description box. So if anyone has not done retirement, please visit that link and watch the video. So today we will start a new chapter, that is a chapter number 6, very easy and scoring chapter. So without wasting much time, we will move to our next chapter, dissolution of partnership firm. Now what we are going to see in this chapter, first we'll see the introduction, meaning, definition of dissolution of partnership firm. Second we'll see the reason for dissolution. Third, the difference between dissolution of partnership and dissolution of firm. This we need to understand what is the difference between these two things. Next, effect, accounting treatment and accounting procedure. So slowly we'll begin. So first move to the introduction, meaning and definition. Very simple. Dissolution means dissolving something. In another word, we can say dissolution means close down or winding up business. We have seen in admission and retirement that one partner comes, what happened? If one partner went, what happened? In this chapter, we are going to see if all partners decided to close their business, then what we have to do, what there will be a effect. So this is a simple meaning. Dissolution means close down or winding up the business. In another word, we can say dissolution means discontinue function of a firm. That means whatever they are doing the business, they need to stop immediately. Now we'll see the definition. According to Indian Partnership Act 1932, see in admission of partner, I also tell you that 1932 is very important for you. What 1932 Act say? It implies the complete breakdown. Focus here. Complete breakdown of the relation of partnership between all the partners. See, between all the partners, this is the most important. In retirement, we have seen if one partner left, business may continue. Remaining partner, continue partner can run the business. But in dissolution, it does not happen. Here, complete breakdown of relation of partnership between all the partners. So please understand the difference between a retirement of partner and the dissolution. Now we'll move to the next. What are the reasons of dissolution of firm? First reason, voluntarily act of partners themselves. इसका मतलब क्या है कि all partners voluntarily decided not to continue the business. हो सकता है उस पार्टनर में झगड़े हुए होंगे, कुछ और कोई प्रॉब्लम होगा, तो सब पार्टनर्स ने मिलकर बैठकर डिसाइड किया कि हम ये बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेंगे. Second reason है when the period, that means duration of partnership firm is expired. That means जब पार्टनरशिप होती है तो पहले ही ये डिसाइड करते हैं कि वी विल रन द बिजनेस फॉर 5 years और 10 years और 15 years. And once this year get completed, automatically their partnership firm get dissolved. जैसे ही वक्त खत्म होता है, पीरियड खत्म होता है, उनकी पार्टनरशिप खत्म होती है. फॉर एग्जाम्पल आपकी 12th ये 12 महीने की है, 1 ईयर की है. जैसा ही 1 साल खत्म होगा, आपकी 12th खत्म हो जाएगी. So it depends on the period duration also. Now we'll move to the third. Partnership can be dissolved after completion of specific venture. Now what is the meaning of venture? Venture means project. फॉर एग्जाम्पल एक फर्म ने डिसाइड किया कि हम मेट्रो बनाएंगे. मेट्रो मतलब क्या, जो रेलवे अब है ना हमारे पुणे में लॉन्च हो रही है, तो मेट्रो बनाएंगे. मेट्रो के बनाने के लिए, वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे नीड 10 years.
तो जब तक वो मेट्रो का काम कंप्लीट नहीं होता है तब तक उनकी पार्टनरशिप होगी. वंस दैट मेट्रो प्रोजेक्ट फिनिश देयर पार्टनरशिप विल गेट डिसॉल्व. दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है या बड़ा सा मॉल बनाना है हमें, 5th फ्लोर का, 6th फ्लोर का. ठीक है, एक बार वो मॉल फिनिश हो गया, खत्म हो गया बना के, कंस्ट्रक्ट होके, तो उनकी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या होगी, डिसॉल्व होगी. ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग मी. नेक्स्ट वन इज द इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर or one partner. Now what is the insolvency? We have seen in 11th standard, insolvent means when liability is more than the asset. जब लोन लाइबिलिटी ज्यादा होती है, किससे ज्यादा होती है, असेट से ज्यादा होती है, तब वो फर्म इंसॉल्वेंट होती है या पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है. जिस पार्टनर की लाइबिलिटी ज्यादा असेट कम, जो पार्टनर बिजनेस को पेमेंट नहीं कर सकता है, इनकैपेबल होता है, वो पार्टनर इंसॉल्वेंट कहलाता है. तो अगर ऑल पार्टनर, see here, all partner or one partner become insolvent, firm get dissolved. Next one, illegal unlawful business activity. कोई बिजनेस है जिसे गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने अलाउ नहीं किया है, अगर वो आप बिजनेस करोगे और गवर्नमेंट को पता चल गया तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, डिसॉल्व होगी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, पार्टनरशिप at will can be dissolved giving notice of 14 days. या पार्टनरशिप 14 डेज अगर हम पहले नोटिस देते हैं तो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है. दिस इज वन एंड द सेम रीजन. यहाँ पे दोनों पे पार्टनर्स के मर्जी पे डिपेंड होता है, वेदर दे वांट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस और वेदर दे वांट टू स्टॉप द बिजनेस. So these are basically 6 reasons. But in addition above circumstance, our court can order to dissolve the partnership firm, guilt of misconduct, partner become unsound mind. ये भी दो है, और breach of agreement. यहाँ पे agreement word है जो नहीं आया है by mistake, agreement है. ठीक है, तो कोर्ट भी ऑर्डर दे सकती है फर्म को डिसॉल्व करने की. कब दे सकती है, मिस कंडक्ट, अगर कुछ उनके हाथ से गलत हो गया, किसी ने कुछ गलत काम कर दिया पार्टनर्स ने, तो कोर्ट उन्हें ऑर्डर दे सकती है कि अब आपका बिजनेस बंद करो. या पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड, मतलब क्या, पार्टनर, कोई भी पार्टनर अगर पागल होता है, उसकी कंडीशन, मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकती है डिसॉल्यूशन का. एंड लास्ट वन, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, अगर कुछ उन्होंने एग्रीमेंट किया होगा और वो एग्रीमेंट उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा, ब्रेक किया होगा वो एग्रीमेंट को, तो भी कोर्ट को राइट है कि वो पार्टनरशिप डिसॉल्व कर सकती है. सो बेसिकली दिस आर द रीजन फॉर डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म. आई होप आपको समझ में आया है. डिसॉल्यूशन मतलब बिजनेस बंद करना, पार्टनरशिप फर्म बंद करना. Now we'll move to the next. Now difference between the dissolution of partnership and dissolution of firm. See, हमें ये चैप्टर करना है, हमें dissolution of firm देखना है. ठीक है, हमें dissolution of partnership नहीं देखना है. So we'll see the difference. Meaning, it may not involve dissolution of firm. फॉर एग्जाम्पल, अगर 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर चला जाता है फर्म के बाहर, उसे नहीं कंटिन्यू करना है, तो भी पार्टनरशिप फर्म जो है, बिजनेस जो है, वो कंटिन्यू हो सकता है. बट हियर सी, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन अगर फर्म, दुकान ही हम बंद करेंगे तो ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, डिसॉल्व होगी. The nature of the dissolution of partnership is voluntary. ये अपने मन पे होता है. अगर आपने सीखा होगा रिटायरमेंट में, किसी को रिटायर होना है, उसे नहीं पसंद आया बिजनेस, या उसकी उम्र हो चुकी है, या उसको अब इंटरेस्ट नहीं है, उसको कुछ नया बिजनेस खोलना है, तो पार्टनर रिटायर हो सकता है. तो ये पूरा उसके मर्जी पे होता है. Here also voluntarily
और कंपलसरी। अभी मैंने आपको रीजन बताया, वॉलंटरी हो सकते हैं अगर ऑल पार्टनर डिसाइडेड नहीं, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू बिजनेस, तो दे कैन डिसॉल्व द फर्म। और कंपलसरी, कभी कभी कोर्ट भी उन्हें कंपलसरी डिसॉल्यूशन के ऑर्डर्स देता है। नाउ कंटिन्यू ऑफ बिजनेस, अभी मैंने ये पॉइंट में बताया है कि पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होती है, कोई पार्टनर्स चला जाता है तो भी बिजनेस कंटिन्यू होता है, बट यहाँ पे बिजनेस टोटली डिसकंटिन्यू होता है, कंप्लीट शटर डाउन। यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है कि रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ये आपको पता है वर्ड्स, किधर देखा है हमने ये वर्ड्स, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी? यस, इन एडमिशन एंड रिटायरमेंट। तो यहाँ पे सिर्फ हमें रिवैल्यूएशन करना होता है हमारे असेट का एंड लायबिलिटी का, बट यहाँ पे हमको रियलाइजेशन करना होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइजेशन? सिंपल, रियलाइजेशन मीन्स कन्वर्ट द असेट इनटू कैश फॉर्म। सिंपल बात है, अगर आपको बिजनेस क्लोज डाउन करना है तो पहले क्या करना होगा, आपकी जो भी असेट है बिजनेस में उसे बेचना होगा, और वो बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा उससे आपको लायबिलिटी पे करना होगी। सो दिस इट रिक्वायर रियलाइजेशन ऑफ असेट, दैट मीन्स सोल्ड। रियलाइजेशन का मतलब होता है sold, selling out the assets and out of that cash paying the liability. Final closure of book, it does not require final closure। नहीं, यहाँ पे जरूरी नहीं है, कंटिन्यू हो सकता है बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि बिजनेस शुड कंटिन्यू, बट हियर वी नीड टू क्लोज द अकाउंट। अगर भैया आपका दुकान ही नहीं है, आपका बिजनेस ही नहीं है, तो आपको तो अकाउंट क्लोज ही करना होगा, तो ही गवर्नमेंट आपको परमिशन देगी डिसॉल्यूशन की। ऐसे नहीं है कि आज आपके मन में आया कि बंद कर दो और आपने बंद कर दिया। नो, यू हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। एंड द लास्ट, कोर्ट ऑर्डर कैन नॉट डिसॉल्व द पार्टनरशिप। यहाँ पे कोर्ट का कोई काम नहीं होता है, ये टोटली वॉलेंटरी होता है, पूरा ये परमिशन विद परमिशन ऑफ पार्टनर्स होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है। हियर वी नीड कोर्ट ऑर्डर। ऐसे नहीं आज मन में आया बंद करो और बंद हो गया, नहीं, हियर वी नीड टू फॉलो सम प्रोसीजर, और यही प्रोसीजर हम अगले वीडियोस में देखने वाले हैं। आई होप समझ में आया है। आई एम गोइंग स्लोली एंड स्लोली। नाउ नेक्स्ट वन, accounting procedure. Now see here, first accounting procedure, it's a simple dissolution and dissolution under insolvency. Now आपके टेक्स्ट बुक में ये दोनों तरीके दिए हैं, कुछ प्रॉब्लम सिंपल डिसॉल्यूशन पे दिए हैं और कुछ प्रॉब्लम अंडर इंसॉल्वेंसी के सिचुएशन में दिए हैं। सिंपल डिसॉल्यूशन मतलब क्या, जहाँ पे कोर्ट का कोई काम नहीं होता है, फर्म डिसाइड करती है, पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि लेट्स डिसॉल्व द फर्म, लेट्स क्लोज डाउन द फर्म, और वो सिंपल अपने असेट बेचते हैं, लायबिलिटी पे करते हैं, सब फाइनल अकाउंट क्लोज करते हैं और टाटा बाय बाय करते हैं, सिंपल डिसॉल्यूशन। बट हियर वी नीड सेपरेट प्रोसीजर। ये हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी कि क्या फर्क है सिंपल डिसॉल्यूशन में और इंसॉल्वेंसी डिसॉल्यूशन में। देन नेक्स्ट इज द सिंपल डिसॉल्यूशन। सिंपल डिसॉल्यूशन मीन्स क्या, व्हेन ऑल पार्टनर आर सॉल्वेंट बट दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म। मतलब ठीक ठाक है, सब पार्टनर्स की असेट ये लायबिलिटी से ज्यादा है, they are all are good in condition, financial condition, but still they want to dissolve the firm due to any reason। अभी हमने देखा क्या क्या रीजन है, this is called simple dissolution। तो यहाँ पे हमको कुछ ज्यादा अकाउंट ओपन नहीं करने, मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन अकाउंट। अभी मैंने बताया है रियलाइजेशन अकाउंट मीन्स कन्वर्ट द असेट इनटू कैश फॉर्म। सिंपल, यहाँ पे हमें असेट सोल्ड करने हैं और जो भी पैसा मिलेगा उससे लायबिलिटी पे करनी है। तो दिस इज वन फर्स्ट अकाउंट। सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल, दिस इज अ
सिमिलर टू एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब आपको इसकी थोड़ी सी आइडिया आई होगी कि क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट इज अ करंट अकाउंट इफ कैपिटल मेथड इज फिक्स्ड। देखो एडमिशन में लास्ट प्रॉब्लम 10th वन उसमें दिया है, अगर क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट भी देते हैं और करंट भी देते हैं तो हमें ये दोनों ओपन करना होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड दिया है तो वी नीड टू ओपन दिस अकाउंट ओनली। तो ये कभी कभार ओपन करना पड़ता है, हमेशा नहीं। नेक्स्ट पार्टनर लोन अकाउंट इफ नेसेसरी। अगर फर्म ने पार्टनर से ही लोन लिया है तो हमें ये सेपरेट अकाउंट ओपन करना होता है, हमेशा नहीं। अगर दिया होगा तो ही आपको ओपन करना है इफ नेसेसरी, सो दिस इज नॉट कंपल्सरी। And last one is a cash or bank account. See, so basically we have to open first, this is a second, and this one is a third. So we have to open 3 accounts. Sometime we have to open partner's current account, sometime we have to open partner's loan account. Otherwise we have to see only 3 accounts. Now remember admission and retirement, there also you have to open 3 accounts. फर्स्ट इट्स विच अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ना। एडमिशन में हमने क्या सीखा था, एडमिशन एंड इन रिटायरमेंट वी हैव सीन रिवैल्यूएशन अकाउंट मींस रिवैल्यूएट द असेट एंड लायबिलिटी। फिर से हमको रिवैल्यूएट करना था, उसकी नई कॉस्ट नई अमाउंट हमें बैलेंस शीट में लिखना थी, बट यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हमें क्या करना है, वी मीन्स पार्टनर नीड टू सेल आउट द असेट and pay out the liability. So this is the realization account. In partners capital, we have to pass the entry related with the partners. And the third is the cash or bank account. Now if you remember, in admission we open a new balance sheet, right? Then why we have not opened here new balance sheet? In retirement also we have seen we have to open new balance sheet. Then why not in dissolution? Yes. So see, if we sold out asset and we pay out the liability in this account, अगर हम सब asset बेच रहे हैं, अगर हम सब liability पे कर रही है तो कुछ बच रहा ही नहीं है हमारे पास। तो अगर कुछ asset ही नहीं है हमारे पास, liability नहीं है हमारे पास, तो बैलेंस शीट ओपन करके क्या फायदा है? बैलेंस शीट का तो काम ही नहीं है क्योंकि फर्म ही क्लोज हो रही है। So instead of balance sheet, we are going to open this account, cash or bank account. Done? And instead of balance sheet, we need to tally this account. ये account अब tally होना चाहिए। अगर ये account आपका tally हो गया तो आपका problem complete correct है। I hope you are getting me. So now we'll move. See, these are basic account. First is the realization account. सिर्फ नाम चेंज हुआ है, रिवैल्यूएशन की जगह रियलाइजेशन आया है, अदरवाइज सेम डेबिट एंड क्रेडिट। पर्टिकुलर वी हैव टू ओपन 2 columns for inner and outer. Here we need to add or plus, we have seen in admission and retirement. Here also credit, this is called gross column, this is called net column. फाइनल अमाउंट वी हैव टू राइट हियर। आखिरी में हमको टोटल या आउटर कॉलम की करनी होती है, डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट। डन। सो दिस इज अ रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। सी, इट्स अ नॉमिनल। रिवैल्यूएशन भी हमारा नॉमिनल ही अकाउंट था। दिस इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट। ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस अगर कुछ भी होता है हमें तो वी नीड टू राइट हियर। ठीक है, सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट इज द पार्टनर्स capital account. See, again here debit and credit. Here I took 3 partners. Sometime in question they will give 2 partners, sometime they will give 3 partners. So before opening this, read the question, how many partners they have given. According to that you have to draw this account. Okay, debit and credit partners are the personal account. See, write with me whenever you listen account lecture. So don't listen only, take your notebook, pen, pencil, scale, everything should be ready and write along with me. Okay, so this is debit and credit.
and then finally we'll move to the cash oblique bank account. Sometimes they give in the balance sheet bank account, sometimes they use cash in hand. So make a habit, right? Cash oblique bank, या आदत ही डालो, cash oblique bank दोनों लिखा करो. Then so basically these are the three accounts. और दो अकाउंट है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट. इफ दे आस्क, अगर उन्होंने बोला है तो ही हमें बनाना है, अदरवाइज जबरदस्ती बनाना नहीं है. वी नीड टू ओपन दिस थ्री अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट, सेकेंड अकाउंट एंड दिस वन इज द लास्ट अकाउंट, एंड गो थ्रू सीक्वेंस ओनली, बिकॉज इसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग दिस पार्टनर, और इसका जो भी बैलेंस आएगा विल डिस्ट्रीब्यूट इन द cash and bank, means we'll transfer here and our cash should get tally. I hope accounts also get clear. Now what we have to do, if you remember admission and retirement, पहले हम पोस्टिंग करते थे, क्वेश्चन में हमें ओल्ड बैलेंस शीट दी जाती थी, हम वो ओल्ड बैलेंस शीट न्यू बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट करते थे, है ना. यहाँ पे भी आपको ओल्ड बैलेंस शीट दी जाएगी, बट यहाँ पे हमें न्यू बैलेंस शीट ओपन नहीं करनी है. ठीक है. So this is a simple step to be follow, and please write down these steps. यही steps से हमें हमारे practical problem solve करने हैं. So first step, transfer all asset and liability in realization account. Just we have seen realization account. अब हमारे पास new balance sheet तो है नहीं, तो हम asset and liability कहाँ transfer करेंगे? realization account में transfer करेंगे. ठीक है. All you know, asset show which side? Debit side. ये आपको रट्टा ही मारना है. And liability always show credit side. ठीक है, लिखो आप. Next step फिर आपको क्या करना है? If any partner loan given in the balance sheet, open separate partner loan account. ठीक से कभी भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, पहली आदत डालो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ो. जो बैलेंस शीट दी है ओल्ड बैलेंस शीट, वो ठीक से पढ़ो. अगर ओल्ड बैलेंस शीट में दिया होगा पार्टनर्स लोन, तो आपको उसका अलग अकाउंट ओपन करना है. थर्ड, रियलाइज ऑल असेट समटाइम टेकन बाय पार्टनर ऑल्सो. अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, एक बार आपने ट्रांसफर कर दिया आपके असेट एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में, फिर आपको उसे सोल्ड आउट करना है, बेचना है, क्योंकि भैया पैसे चाहिए ना आपको. आपकी लायबिलिटी आपके एक्सटर्नल पार्टीज होंगे जिससे आपने पैसे उठाए होंगे, क्रेडिटर्स होंगे जिससे आपने उधारी ली होगी, बैंक लोन होगा, बैंक ओडी होगा. सो नाउ यू हैव टू पे दिस एंड देन यू कैन क्लोज डाउन योर बिजनेस. ऐसे नहीं है कि आज मन में आ गया बिजनेस बंद कर दिया, नहीं. यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप्स. पहले आपको जितने भी एसेट है उसे बेचना होगा. अगर वो एसेट नहीं बेचे जा रहे हैं तो पार्टनर्स लेकर जाएगा. फिर जो पैसे मिलेंगे उसमें से आपको क्या करना होगा? लायबिलिटी पे करना होगी. सी, रीड केयरफुली. Whatever cash get after selling asset, pay realization expenses first and pay external liability. Now first जो भी पैसा आएगा realize करके, सेल करके, see here selling that means realizing, जो भी पैसा आएगा पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. नाउ व्हाट इज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? सी, अगर हमें कोई बिजनेस बंद करना है तो ऐसे नहीं हम बंद कर सकते, उसके लिए हमको गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन देना होता है, बहुत सारी चीजें होती है, उस पर खर्चा होता है. ठीक है. तो वो खर्चा जो होता है डिसोल्यूशन पे, उसे कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. समझ में आया? तो पहले हमको ये खर्चा पे करना है और बाद में एक्सटर्नल लायबिलिटी. एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब क्या? क्रेडिटर्स, बैंक ओडी, बैंक लोन, कई और किसी फ्रेंड से लोन लिया होगा हमने, उसका लोन हमें क्या करना है? पे करना है. डन. एंड नेक्स्ट, if any cash left after settle down external liability, then pay partners loan if applicable. अभी मैंने बताया है, अगर बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है कि पार्टनर्स ने भी लोन दिया है, बिजनेस को देते हैं ना, कोई कोई पार्टनर्स बिजनेस को लोन देते हैं, उस पर इंटरेस्ट भी उनको मिलता है. तो अगर किसी पार्टनर्स ने लोन दिया होगा तो पहले क्या करना है? पहले एक्सटर्नल लायबिलिटी, बाहर वालों का मुंह चुप करना है, और फिर अगर पैसे, इफ एनी कैश लेफ्ट,
तो हमें किसका लोन पे करना है? पार्टनर्स लोन। देखो क्योंकि ये तो घर वाला है, पहले बाहर वालों का हम मुंह बंद करेंगे और फिर पैसे बचने के बाद अपना जो घर वाला है, अपना जो नजदीक का है, उसका लोन हम पे करेंगे। एंड नेक्स्ट फाइनली एनी कैश लेफ्ट देन डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। इतना सब करने के बाद अगर कुछ पैसे बचते हैं तो फिर पार्टनर्स क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स। तो देखो आपको क्या क्या पहले करना है। सिंपल, आपको पहले सब असेट एंड लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। फिर अगर पार्टनर्स का लोन होगा तो उसको सेपरेट लिखना है। क्यों सेपरेट ओपन करना है, आपको यह समझ में आया होगा। अगर कुछ पैसे बचते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटी पे करने के बाद तो ही आपको ये पार्टनर्स का लोन पे करना है। ठीक है, फिर सब असेट एक बार आपने सब जमा कर लिए कि भैया अपने पास कितने असेट है, बिल्डिंग कितनी है, मशीनरी कितना है, स्टॉक कितना है। वंस यू कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द असेट देन सोल्ड आउट द असेट, sometime taken by partners also, and whatever the cash get after selling the asset, pay realization expenses first, see, and then pay external liability. If any cash left, then pay the partners loan, and if any balance left, then distribute among the partners. ये आप लिख कर लो, यही स्टेप से हम अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट है तो राइट इन कमेंट बॉक्स। आपको सब्सक्राइब कीजिए, बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि जब जब मैं वीडियो नया डाउनलोड करूँगी, सॉरी अपलोड करूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए क्या करना होगा? यस, प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।